here. Na amutra. Now, nev e, na amutra. So this is the verse number 40 of chapter number 6 Srimad Bhagavad Gita. पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति. Lord Krishna says, O Parth, O the son of Pratha Arjun, Nev ih na amutra, neither here nor in higher abode. Vinasastasya vidyate, those who are seekers of spirituality are not going to destructive or evil abodes. Those are not spoiled. Who are seekers, who are working for their evolution are not getting spoiled. जो अपने विकास के लिए परिश्रम करते हैं उनका नाश नहीं होता, उनका परिश्रम कभी असफल नहीं होता. पार्थ नैव इह न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कश्चित्. That is, those who strive for God realization, not those persons go to evil destination. Durgatim tat gakshati. So those do not go to evil destination. O tat. Very affectionately, Lord Krishna says Arjun, O tat. Though Arjun was friend of Krishna and those were cousins. Lord Krishna and Arjun were cousins. Then why Lord Krishna is saying as tat to Arjun? Because Lord Krishna is very much affectionate to all the soul of the world. And one of the soul of the world is Arjun also. That's why Lord Krishna affectionately says that Tat, my son, because I am like father and you all are my son. In this way, Lord Krishna addresses to Arjun. And how a father can see the sons who are working sincerely and following their father will go in vain or go to evil destination. So I will not allow them to go to evil destination. They will ultimately come to me, come to my abode. So यहाँ पर कहा है भगवान ने कि हे प्रथापुत्र अर्जुन, ना यहाँ पर ना वहां पर, न अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते. जो व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर चला है, विनाशः तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता. न ही कल्याणकृत कश्चित्, जो कल्याण के पथ पर है, न ही कल्याणकृत कश्चित्, जो भगवान के रास्ते पर है, दुर्गतिम तात गच्छति, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता. मेरे पुत्र अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन को पुत्र कह दिया कि मैं एक पिता के समान अपने उन सभी बच्चों का हित करता हूं जो मेरी ओर मेरे लिए उद्यम करते हैं, या भगवत पथ पर अपनी उन्नति के लिए, आत्मोत्थान के लिए उन्नति करते हैं, कि वे भी उसी प्रकार से सच्चित आनंद हो जाए. Literal meaning of this verse is, the blessed Lord says, O Parth, there is certainly no ruin for him here or thereafter, for no one engaged in good meats with a deplorable end, my son. So they will not meet a deplorable end, they will certainly go to some appreciable destination. Now, here the word tat is for endearment, literally means son. By addressing Arjun as tat, Shri Krishna is demonstrating his affection to him. The son is affectionately addressed as tat. So, like Guru is addressing disciple as tat, in the many cases, the sincere one, the eldermost person in the family addresses the others one like that. So, who is elder one is addressing
द स्मॉलर वन एस तात मोर अति पुण्य बहुता देखियत नयन राम कर दूता. इन दिस वे ऑल्सो विभीषण एड्रेस हनुमान ऐसा. सो वेरी अफेक्शन. If there is a extreme case of affection, then also Tat is addressed. So Lord Krishna here is addressing Arjuna as Tat. Shri Krishna goes on to explain how God preserves the efforts of yogi who does not complete the journey in present life. If we could not complete our journey in present life, such persons are known as yog bhrasht. That is for incomplete journey. How they are yog bhrasht? Though they were very affectionate or inclined towards spiritual goal, but the materialistic lustre or attraction or affection has diverted them from spiritual path, and ultimately they take U-turn and again come back to material world. So in such case, what will happen? Because in this chapter, Lord Krishna says that control your mind, control your senses. This is Atma Sanyam Yoga. And ultimately submit yourself to God feed. Now Arjun says, no, sir. It is possible, because that is mind is so restless. How can we control? And what will happen to those who ultimately quit the path of spirituality and again come back to material world? So Lord Krishna says that they will not meet a heavy land. They are submitted to me, they are working a little bit for me. जो अध्यात्म के पथ पर थोड़ा भी चला है उसका काउंट हो जाता है, उसका लिख जाता है, उसका रास्ता वहीं से ही आगे चलता है. जैसे कि किसी रास्ते का पथिक यदि रास्ते में टेंट लगाकर रात को विश्राम कर लेता है तो उसकी यात्रा उसके ही आगे से शुरू होगी जब वो सुबह उठेगा. उसी प्रकार से अध्यात्म के मार्ग पर अगर हम थोड़ा चलते हैं तो वहां तक का हमारा चलना काउंट हो जाता है. सो इन दिस वे पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति. उसका दुर्गति नहीं होता. नेक्स्ट वर्स. So what happens to such devotees who have failed to complete their journey in the present life? That is verse number 41. प्राप्य पुण्य कृताम लोकान अनुषित्वा शाश्वती समा शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते. प्राप्य पुण्य कृताम लोकान. So they will ultimately after death get the virtuous abode. There are higher abodes like heaven, स्वर्ग हैं और ऊंचे लोक हैं. तो वे चूंकि वो भोग की लालसा में धरती में यहाँ वहां फिरे हैं और भगवान के रास्ते से हटे हैं, तो भगवान उनको ऐसे लोकों में, सुंदर लोकों में भेजता है जहां भोग की प्रचुर सामग्री उपलब्ध है. और फिर वे काफी वर्षों तक पहले अपनी उस भोग की जो बची हुई इच्छा है उसको शांत कर लेते हैं. प्राप्य पुण्य कृताम लोकान. पुण्य कर्मा लोग वहां रहते हैं. वहां कौन रहता है? वहां वैसे ही लोग रहते हैं जो स्पिरिचुअल पाथ से डेविएट हो गए हैं, जो अध्यात्म पथ से विमुख हो गए हैं. उनमें चूंकि भोग की इच्छा थी, लेकिन वहां पर भी पुण्य कर्मा है. सभी लोग वहां वैसे ही मिलेंगे जो भगवान के पथ पर थे. तो वहां पर एक आत्मिक शांति मिलेगी, वहां पर वो कुछ समय तक रहता है. प्राप्य पुण्य कृतान लोकान अनुषित्वा शाश्वती समा. लोकान उषित्वा शाश्वती समा. So there the person, the good soul rest for ushitva, that means sits or stays. Shashwati sama, long period of time. So there the person, the devotee, the spiritualistic person stays for a long time. And Shuchi Nam Srimatam Gehe, after that comes back to earth. Because in this earth only we can submit to God and complete our journey. It is possible on earth only. तो जब वो व्यक्ति जो योग भ्रष्ट है, जो अपने जन्म में भगवान के पद से भूलकर फिर से माया में लग गया है, वो मृत्यु के बाद ऐसे लोकों में जाता है जहां वैसे ही लोग हैं जो भगवान के पथ पर लगे हुए थे और अभी उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई है. वे वहां रुकते हैं, स्टे करते हैं.
ये एक तरीके की ऊंचे लोगों की धर्मशाला है जहां कोई रुकता हो, तो वहां वो जाता है, वहां आनंद प्राप्त करता है, आत्मिक आनंद भी प्राप्त करता है, भोगों का भी आनंद प्राप्त करता है। आफ्टर दैट when the person stays there in virtuous abode, comes back to earth, shuchi nam shrimatam gehe, then take birth in pious families, those family which are pious, जो पवित्र घर है, शुचि नाम, श्रीमताम गेहे, and also there is no depravity, there is always, it is full of money, full of prosperity in that house, that yogi, that soul is born again. That means शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते, that yog bhrasht, that is unsuccessful yogis, abhijayate, take birth in those house which are pious and which are prosperous. Why prosperous? Because that person, that unsuccessful yogi has not to strive or struggle for day to day livelihood. They have to only concentrate or focus on devotion to God. That's why Shri is always there. Shri Matam Gehe. Shri, that means prosperity, that means Lakshmi. तो ऐसे योग भ्रष्ट लोग, ऐसे अनसक्सेसफुल योगी लोग वहां ऐसे घरों में जन्म लेते हैं, ऊंचे लोकों में निवास करने के बाद, लंबे समय तक भोग करने के बाद वे ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जो पवित्र घर, पवित्र घर होने के साथ साथ श्रीमताम गेहे, वहां धन की कोई कमी नहीं है, उन्हें जीविका के लिए कोई परिश्रम नहीं करना है, योग भ्रष्टो भी जाए थे। जैसे कि मेरा जन्म कितने अच्छे परिवार में हुआ, मेरी दादी कितना भगवान को मानने वाली थी, नानी कितना मानने वाली थी, मेरी माँ जो कि इसी मार्ग में लगी है, पिताजी इसी मार्ग में लगे, जिधर मैं देखता हूं उधर भगवत की ही चर्चा होती है। तो ऐसे परिवार में कि उसको फिर धन संपदा की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे परिवार में भगवान कृपा करके जन्म देते हैं, उसको फिर धन के लिए भी स्ट्रगल नहीं करना, सिर्फ भगवान पर अपने को लगा देना है कि तू जहां से चला था उसी के आगे चलता चल। That is, the Lord is very affectionate. Lord is very affectionate like a father to we sons. हम पुत्रों के लिए वो पिता की तरह हैं, वो जानते हैं कि मेरा पुत्र मेरे मार्ग पर लगा हुआ है, तो उसके लिए फिर श्री की भी कमी नहीं होती है, क्योंकि भगवान को ही तो माया अनुगामी है, श्री उनकी अनुगामी है, विद्या अनुगामी है, तो क्या नहीं दे देते हैं, विद्या दे देते हैं, श्री दे देते हैं, हर प्रकार की सुख संपदा दे देते हैं कि सिर्फ तू जिस काम में लगा था उसी काम को आगे बढ़ा, तेरे लिए संसार के संघर्ष कुछ भी नहीं। सो प्राप्य पुण्य कृताम लोकान योग, इस तरीके से उषित्वा शाश्वती समान। Now literal meaning of this verse is attaining the words of righteous and residing there for eternal years. Many long years that person lives there in virtuous abode. The man fallen from yoga is born in the house of pious and the prosperous. Residence in celestial abode is awarded to those who engage in mundane virtuous deed and fruitive karmakand activities. So earlier it is possible that we might have done some karmakand of Veda. If you do this, if you do Karwa Chauth, you will get your life of your husband. If you do Lakshmi Puja, you will get prosperity for Saraswati Puja. Many of the karmakand, Chhat, and there are many of the karmakand, Sakat, we are doing many of the fast and different virtuous deed to get result. But Lord says, if you are with selflessly submitted to me, यदि मेरा भक्त स्वार्थ रहित होकर, योगी वही है जो भगवान से युक्त हो जाए, नहीं तो कुछ कर्म करते हैं तो कहीं कुछ ऐसे होते हैं कि जो हठ योगी होते हैं वो दूसरे मार्गों से आते हैं, वो सीधा भगवान से नहीं जुड़े, लेकिन जो भक्त होता है वो बिना शर्त भगवान से जुड़ जाता है। कुछ ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान के लिए भगवान पर जाते हैं, कुछ कर्म योगी होते हैं कर्म के माध्यम से
जो माध्यम भी छोड़ दे, सीधा भगवान से जुड़ जाए। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो कर्म कांड को छोड़ चुके हैं, पिछले जन्मों में वो कर्म कांड में लिप्त थे कि ये भोग मिल जाए वो भोग मिल जाए, तो भगवान उनको कहते हैं कि पहले तू हमारे ऊंचे लोगों में वो भोग भोग ले, जब तेरी भोग की इच्छा कम हो जाए, शांत हो जाए, तो मैं तुझे ऐसे लोगों के ऐसे परिवार में जन्म दूंगा कि जहां तू सिर्फ मेरी भक्ति कर पाएगा, तेरे में भोगों की लालसा नहीं होगी। So residence in the celestial abode is awarded to those who engage in mundane virtuous deed and fruitive karma kand activities in that is enjoined in Vedas. So why should an unsuccessful yogi go to celestial abode? The reason is that opposite to yoga is bhog. So the person who has fallen from yoga will go to bhog. Because of the bhog only we are falling from yoga. So one falls from yoga because of desire for bhog. So God, like an indulgent father, gives that fallen yogi a chance to engage in bhog in next life. So Lord sends us to that higher virtuous abode. Next verse is 4:2. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. अथवा, either they are born in prosperous and pious family, अथवा योगिनाम इव कुले भवति धीमताम्, otherwise they are born like yogis, though they are unsuccessful yogi. But also if they are at the verge of completion, यदि उनकी यात्रा समाप्ति के ओर है, पहुंचने की ओर है, तो वे योगियों की ही तरह, यद्यपि वे असफल योगी हैं, उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई है, लेकिन जैसा मेरा भक्त होता है, भक्त ही योगी है, जो भगवान से युक्त हो गया वो योगी, वे अथवा योगी नाम इव, वे योगियों की ही तरह, यद्यपि असफल योगी हैं, अभी यात्रा में लगे हैं, लेकिन भगवान कृपा करके उनको देखते हुए, उनकी लगन को देखते हुए, ये तो कितना मेरे में लगन रखता है, योगियों की ही तरह, कुले भवति धीमताम, दे आर born in the family of the wise, who are wise, who know that this world is ephemeral. तो जो ये जानता है कि ये संसार नश्वर है, और अगर अजर अजन्मा और शाश्वत है तो वो ईश्वर ही है. सो इन सच काइंड ऑफ फैमिली दोज अनसक्सेसफुल योगी, दोज योग भ्रष्ट अभिजायते, तो जो असफल योगी हैं, जिन्होंने अपनी यात्रा समाप्त नहीं की है और पूरी नहीं की है, या वे इस संसार के भोगों में फिर लिप्त हो गए हैं मुझको छोड़कर, ऐसे योग भ्रष्ट मेरे पुत्र बुद्धिमानों के घर में जन्म लेते हैं. दैट इज कुले भवति धीमताम, दैट मीन्स they take birth of the wise. Dhi means higher, matam means mind, with higher mind. तो जो ऐसे बुद्धिमान परिवार हैं, उनके घर में जो श्रेष्ठ परिवार हैं, जो चीजों को जानते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सताओ व्योरपि दृष्टो तत्वन्यो तत्व दर्शवी. Those who are knowing कि असत की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, ये दोनों ही योगियों के द्वारा उचित प्रकार से, सम्यक प्रकार से देखा गया है. तो ऐसे घरों में योग भ्रष्ट जन्म लेते हैं, और ऐसे ही घरों में योगी भी जन्म लेते हैं. तो इससे सुंदर जन्म क्या हो सकता है. अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतत् हि दुर्लभतरं लोके जन्म यतीदृशम्. एतत् हि दुर्लभतरम, this is the rarest of the rare kind of birth. Those who are taking birth of such family, this is the rarest kind of rare birth. Janma yadidrisham. So literal meaning is this, or he is born in the family of wise yogis only. Such a birth as is of this kind is surely more difficult to get in the world. Everything is
possible, but such a birth is difficult. The circumstances, the situation and family of birth have an important bearing upon the course of our life. We may set our desire, our goal, but where we take birth, even we are taking the physical inheritance from the family, whatever the features, gesture, body structure we are getting, it is from parents only. But also there is a social heritage. हमको सामाजिक उत्तराधिकार भी अपने माता पिता से मिलता है. हमारे माता पिता क्या करते हैं, बचपन से ही हम उन चीजों को देखते हैं, उनको बरतते हैं, फिर वैसा ही करने लगते हैं. तो ये एक योगी के ही घर में संभव हो पाता है कि वहां उनके बच्चे देखें कि वो कैसा कर रहे हैं, उनके दादी कैसा कर रहे हैं, उनकी नानी कैसा कर रही हैं. इनको देखते देखते वो वैसे ही बड़ा होता है और वो उसके आत्मोत्थान के लिए सहज भी है, क्योंकि वो उनसे होकर के पूर्व जन्मों में आया है. यद्यपि उसको इस चीज का भान नहीं है, लेकिन वो वहीं से आया है, तो उसको वैसा ही परिवार भगवान ने दिया है. सो वी आर गेटिंग द सोशल हेरिटेज फ्रॉम आवर फैमिली. Social heritage means what is the culture, what is the pattern of living, what is the pious living. It all that child gets from the parents and all kids and kin. So the place and family of our birth has a great impact upon our direction and attainment in life. If the goal of our family is a God, then we are also inclined towards God spontaneously. यदि हमारा परिवार भगवान की ओर उन्मुख है, तो हम भी भगवान की ओर सहज उन्मुख हो जाएंगे. हमको कुछ प्रयास की आवश्यकता नहीं है. और वो बीज तो पूर्व जन्म के ही पड़े हैं, भगवान तो उनको और आगे ही बढ़ाता है. हमारा पिछला किया हुआ, भगवान के लिए किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता. हम अगर बहुत ऊंचा कर रहे हैं, तो हम श्रीमान परिवार में जन्म लेते हैं, ऐसे परिवार में जहां धन का भी अभाव नहीं होता. लक्ष्मी और सरस्वती अनुगामी होती हैं. वे हमारे पीछे अपना हाथ रखे रहती हैं कि किसी प्रकार से मेरे पुत्र को कोई कमी ना हो जाए. सो सच इज द फैमिली इन विच योग भ्रष्टो अभिजायते. द योगी, इनकम्प्लीट अनसक्सेसफुल योगी इज born. Next verse is 43. तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना. तत्र तं बुद्धि संयोगम. And there, when we are born to such family, either in Dhimatam family, wise family, or in Srimatam Gehe, that is prosperous family. So either we are born in prosperous family and to next level, Dhimatam. Dhimatam are the wise family. They are not going for prosperity. They are continually submitted to God. एक है कि बड़े संपन्न परिवार में श्रीमताम गे है, और एक है धीमताम गे है. तो एक संपन्न परिवार है और एक बुद्धिमान परिवार. तो बुद्धिमान परिवार कौन होता है? जहां योगी योगी ही बसते हैं और वे भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पण कर देने में ही अपना सौभाग्य समझते हैं. तो हो सकता है ऐसा योग भ्रष्ट श्रीमताम गेहे पा जाए जन्म, या धीमताम गेहे पा जाए, तो कहीं पर भी पा सकता है. और धीमताम गेहे में जन्म पाने वाले का तो ऐसे तो बिरले ही भक्त हुआ करते हैं. नाउ तत्र तम बुद्धि संयोगम. एंड देयर बुद्धि संयोगम reawakened by wisdom. That whatever is done in previous life, everything is memorized, recapitulated. वो उसको फिर से याद आ जाता है. वो छोटा होते हुए भी संसार के माया जाल में नहीं फंसता. उसका तो मन भगवान की ओर ही रहता है. तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम. That immediately, within a shorter span of time, Paurvadehikam, that is the past bodies. Whatever he has done or she has done in the past body, everything is recapitulated, memorized. जो हमने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, भगवान के प्रति अपना समर्पण दिखाया है, वो सब उसको प्राप्त हो जाता है. जहां तक उसका कॉन्शियसनेस लेवल, मेंटल कॉन्शियसनेस से इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस पहुंचा हो, वहां से ऊपर और ऊपर डिवाइन कॉन्शियसनेस पहुंचा हो, प्रज्ञान चेतना पहुंची हो, ट्रांस कॉन्शियसनेस, देन अल्टीमेटली जितनी भी ऊंची भगवती चेतना पहुंच गई हो. सो ऑल द लेवल्स विच वी हैव ट्रेवल्ड, जहां तक हमारे
द्वार खुल गए हैं अंतर चक्षुओं के, वहां से ही उसकी यात्रा शुरू होती है नई जन्म। शरीर नया है, लेकिन जो हमारी अंतर यात्रा है वो वही पुरानी है, आत्मा का सफर। सो लभते पौर्व देहिकम, what we have attained in spirituality in the past lives, from that only the journey of soul starts in new life. Body is new, but our journey, the distance covered is counted. जो हमने अपनी यात्रा कर ली है वो काउंट होती है, उसका लेखा जोखा होता है। सो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदना। O the son of Kuru dynasty Arjun. So that is, Kuru was a king, that is very famous king of this dynasty, Arjun dynasty of Arjun. So O the son, O the person of the same dynasty, yatate cha tato bhuya. Now there he starts again, bhuya sansiddha. From there he starts again संसिद्ध to attain perfection. वहीं से वो अपनी यात्रा शुरू करता है संसिद्ध, अपनी पूर्णता के लिए। हे कुरुनंदन, कुरुवंश के राजा के नंदन, वहीं से वो अपनी यात्रा अपनी पूर्णता के लिए शुरू करता है जब वो ऐसे घरों में जन्म ले लेता है। Now the literal meaning of this, there he becomes endowed with that wisdom acquired in previous body, and he strives more than before for perfection. O scion of Kuru dynasty, हे कुरु वंश के वंशज, वहीं से वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। तो भगवान हमारी किए का, वॉट एवर वी हैव डन, वॉट आर वी डूइंग इन दिस बर्थ, so in this life span, it is everything is counted. If it is other than bhog, that is, it is concerned to senses, but for our soul, for the journey of soul, whatever we do, it is counted, and in our next life we start from there itself. If we are going very much ahead, अगर हम इस यात्रा में बहुत आगे चले जाते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि हमारे अगले जन्मों में हमको सांसारिक चीजों का अभाव नहीं होता। जो योगी लोग होते हैं उनको चीजों के लिए, रोजी रोटी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये तो बहुत पहले से ही जो श्री है और विद्या है अनुगामी हो जाती हैं, हमारे ऊपर उनका वरद हस्त होता है, जो भगवान की ओर चल देते हैं, भगवान के ही पीछे ये लगी रहती हैं। तो भगवान के ही तो ये सब विलास हैं, ये माया है, तो वैसे ही उनके भक्त के भी वे पीछे लग जाती हैं। सो सच पर्सन इज गेटिंग द हायर अबोर्ड एंड आफ्टर दैट born in a good family. Next verse is 44. पूर्वाभ्यासेन तैनेव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेन एव ह्रियते, that means is attracted, ह्यवशोऽपि सः, other than self. पूर्वाभ्यासेन तेन, whatever that person who is born in such a family, that person from the previous birth, पहले के जन्मों में उसने जो अभ्यास किया है उसी को ही वो प्राप्त कर लेता है नए जन्मों में। पूर्वाभ्यासेन तेन इव ह्रियते, those things are again attained by that person who is born in a new family, new wise family, so easily attained. Like in many cases we are seeing that Gautam Buddha has left the royal palace. Many of the higher saints, they all rich persons, they simply leave the materialistic world, the prosperity, the luster. Why they are leaving? Because in previous life they have done something for spirituality, so their life will, it is inclined out of themselves. यदि उनका खुद पर भी जोर नहीं चलता, they even are avoiding the
एडवाइस ऑफ देयर ओन। जैसे हमारे स्वामी जी ने, बहुत लोग उनको कहते रहे कि नहीं ये बन जाओ, वो बन जाओ, आईएएस में बहुत पैसा है, ऐसे बन जाओ, लेकिन जब जो भगवान की जो पुकार आती है, द कॉल ऑफ गॉड, एट दैट टाइम नो दैट पर्सन केयर्स नोबडी, दो वेरी क्लोज टू हिम, बट दैट पर्सन केयर्स नोबडी। जब ईश्वर की पुकार आती है, कॉल ऑफ गॉड, एट दैट टाइम बस वो अपने भी वशीभूत नहीं रहता, उसका स्वयं पर ही बस नहीं है, तो वो किसकी सुने, वो सीधा भगवान की पुकार की ओर बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान ने उसको इसी उद्देश्य से उस घर में भेजा है कि तूने जो पहले छोड़ा है, अब तू उसे प्राप्त कर ले, अपने अंतिम सत्य को प्राप्त कर ले, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर ले। यहाँ वहां का भटकना, ये सब तो नश्वर है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जिज्ञासुरपि योगस्य, because that person is jigyasu of yogasya, that person is in, it is, person is having a hunger of link with God, तो वो व्यक्ति उसमें ये जिज्ञासा है, योग की जिज्ञासा है, तो वो व्यक्ति जो नया जन्मा है उसमें पहले की ही योग की भूख है। सो शब्द ब्रह्माति वर्तते, that means fruitive portion of Veda, that person transcends the Shabd Brahma Ati Vartate. Shabd Brahma, what does it mean by Shabd Brahma? That is the fruitive action of वेदा। वेदों में कहा गया है ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ये कर्म कांड करोगे तो ये मिलेगा, वो उन सब का उल्लंघन करते हुए, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं, बिचौलिए की आवश्यकता नहीं, उसको कर्म कांडों की भी आवश्यकता नहीं कि ये करने से ये मिलेगा, क्योंकि उसे संसार के किसी चीज का कोई वास्ता ही नहीं है। तो वो उनका अतिवर्तते, उनका उल्लंघन करता हुआ सीधा अपना नाता भगवान से जोड़ लेता है। तो भगवान से जोड़ लेता है, और वो जो नए घर में, बुद्धिमान के घर में जन्म लेता है, तो वो छोटी ही उम्र में, यद्यपि उसको विलास मिला है, उसको श्री मिली है, उसको लक्ष्मी मिली है, फिर भी उन सब को त्यागता हुआ वो अपने परम पिता, अपने प्रभु के चरणों में ही, अपने आप को वार देने में ही अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझता है। तो वो कहीं पर भी कुछ भी हो, उसके लिए इन सब चीजों का कोई मोल नहीं है, जबकि दुनिया उनके पीछे भाग रही है। जो वो छोड़ रहा है, दुनिया उसी के पीछे जीवन लगा रही है, लेकिन वो उन्हीं को छोड़कर प्रभु के पीछे जीवन लगा दे। नाउ गीता जी विल रिसाइट ए भजन फॉर अस। श्री राम मेरा स्वामी सांवरिया, मैं हूँ उनकी बावरिया। जन्म जन्म से साथ है ये मेरा सांचा श्याम पिया, मेरा स्वामी सांवरिया, मैं हूँ उनकी बावरिया। मन में यही विश्वास है, वो तो सदा मेरे पास है। चिंता फिकर अब कोई नहीं, रिश्ता हमारा खास है। चिंतन में है सांवरिया, मैं हूँ उनकी बावरिया। प्रेम सुधा बरसाता है, रस भरे बोल सुनाता है। सर पर हाथ घुमाता है, रोम रोम हर्षाता है। प्रीत भरे मन का दरिया, मैं हूँ उनकी बावरिया। मेरा स्वामी सांवरिया, मैं हूँ उनकी बावरिया।
ना जाने किन कर्मों से ऐसा स्वामी पाया है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्म हर साया है। अंतर मन बजे बांसुरिया, मैं हूँ उनकी बावरिया। मेरा स्वामी सांवरिया, मैं हूँ उनकी बावरिया। जब भी जन्म मिले मुझको, तेरा प्रभु बोले गान करूं। नाचूं बन के जोगनिया, श्री चरणों में ध्यान धरूं। मन में बजे नित पायलिया, मैं हूँ उनकी बावरिया। मेरा स्वामी सांवरिया, मैं हूँ उनकी बावरिया। जन्म जन्म से साथ है ये मेरा साचा राम पिया। मेरा स्वामी सांवरिया। श्री राम। श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न तो हम कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनं। त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, त्वदिष्टं भवतु गोविन्द, न त्वदिष्टं पाहि मां रक्ष मां। तेरी इच्छा पूर्ण हो मां, हम सब तेरी शरण में हैं, अपने चरणों की भक्ति दो मां। श्री राम। राम राम भैया जी, राम राम दीदी, राम 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 राम। राम राम शिव कुमार, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। और हमें बड़ा हर्ष है कि हम लोग तो पुण्य वाले परिवार में जन्म लिए हुए हैं ना, तो हाँ भगवान व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, सब हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं ना। बहुत हम बहुत लोग धन्यवाद। कोई किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक चीज है कि भगवान पे ध्यान दिए जाओ, समर्पण किए जाओ, इसी की कमी है तो है, और तो कोई कमी भगवान ने रखी नहीं। वही हमें बड़ी खुशी हो रही थी, सुन रहे थे तो हमने कहा वाह, पॉजिटिव एनर्जी मिल गई। हम लोग तो बड़े अच्छे, अपने पेरेंट्स अपने बड़ों ने अच्छा अच्छा काम किया, उसी की हमें असर आता जा रहा है। बढ़िया, बहुत बहुत प्यार, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो शिव कुमार आप, बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। राम राम। गीता बहन तो हमारी ऑलराउंडर हैं, बहुत बढ़िया भजन गाती हैं। चलिए, श्री राम राम। राम। सुनीता राम राम, नीता बहन राम राम, सभी भगवत प्रेमियों को सत नमन। कृष्ण भगवान के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी और उन्हीं की कुमार। बातें तो हम लोग सुन रहे हैं। श्रीमद् भगवत हाँ, गीता भगवान मुख से निकली वाणी है, उसके बाद और क्या बचा। बहुत सुंदर व्यवस्था है। राम। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, पार्थो वत्स सुधीर भक्ता, और दुग्धम गीतामृतम महत। सब कुछ उसी में समाये हुए हैं। सभी उपनिषद गाय हैं, और दुहैया गोपाल नंदन है, और जो पार्थ है वो बछड़ा है, और वो जो दूध पी रहा है वो गीता है। गीता और उन्हीं गीता जी ने हमारे लिए भजन गा दिया। इसीलिए, हाँ। और ये मत भगवत गीता उसी का ही चल रहा है, भगवान का ही प्रसाद चल रहा है, सब बहुत सुंदर नित्य जुड़े हुए हैं। कभी कभी लोग तो आज जुड़ेंगे कल जुड़ेंगे, हम लोग भगवान की कितनी कृपा है कि नित्य जुड़े हुए हैं। और सही थैंक यू। बता दिया भैया, और सही बता दिया कि अगर पति को तंबू लगा लेता है तो उसकी यात्रा खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती ही जाती है। होता रहता है, आगे जाएंगे पीछे नहीं जाएंगे। बहुत 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 अच्छी बात है। राम।